गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा। अप टू द ऑर्थो इफेक्ट वी कवर्ड। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया इन टू डिफरेंट मीडियम। फर्स्ट क्या है, गैसियस स्टेट, एंड द सेकेंड इज द एक्वस फेज। तो दोनों ही मीडियम में देखेंगे गैसियस फेज में क्या हो रहा है और एक्वस फेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, नाउ सी द फर्स्ट वन, ammonia in gaseous phase. The basic strength of ammonia, we know that what we have to consider, we have to consider only the electron density of nitrogen. Clear? Electron density available on this nitrogen, the lone pair available on nitrogen. So electron density, as the electron density on nitrogen increase, basic strength will increase. Correct? So in the gaseous phase, we only consider the electronics effect. So we can see here we have plus 1, here we have 2 plus I effect, and here we have 3 plus I effect. Is it okay? Yeah, here we have 1 plus I, 2 plus I, and 3 plus I. So we know that the basic strength of this ammonia will be more than this, and this one will be more than this. Correct? Because we do not have any other interaction available in the gaseous phase. Now in the aqueous phase, what will happen in the aqueous phase means, in the aqueous phase you have water molecules all around in the medium, and you are putting ammonia in the aqueous medium. So what will happen? See this. In aqueous phase, along with the inductive effect, there are two other effects which will dominate, which will come in existence. First is the hydration or solvation, and the second thing is the steric hindrance. Steric hindrance will only be applicable on the third degree of amine. 3 degree of amine degree of amine. You know that if ammonia have, if nitrogen have 3 alkyl chain, then its degree will be 3 degree. If it have 2 alkyl chain, means it will be 2 degree. It have 1 alkyl chain, it will have 1 degree. Correct? So this is 3 degree, this is 2 degree, this is 1 degree. I hope you know that. Now come to the topic. What we say, steric hindrance will only considerable in case of 3 degree ammonia. We will see that how it will be considerable. Now the first thing is the plus I effect. So in the aqueous phase there are three interaction will be available. First one is the inductive. Inductive, we know that as the alkyl group increase, as the alkyl chain increase, plus I effect will increase. So on going top to bottom, plus I inductive will, I will write like this, increase. On going top to bottom, plus I effect will increase, means basic strength will increase. Correct? So basic strength is increasing. On going top to bottom, basic strength should increase. Correct? Because of plus I, basic strength will increase on going top to bottom. Now second thing is the hydration. What is hydration? See this. If ammonia take H plus, if nitrogen donate its lone pair, it will take hydrogen and form NH4. Now NH4 will be like this, H, H, H and H, and there is one plus H. Now since the medium contain water molecules, water is a polar solvent, we know that water is a polar solvent. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में अवेलेबल हैं, और वाटर में क्या होता है, H2O में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इज इट करेक्ट? तो इसके ऊपर माइनस डेल चार्ज है, और नाइट्रोजन से अटैच होने की वजह से हाइड्रोजन पे भी क्या होगा, प्लस डेल चार्ज होगा. इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल है. तो यहां भी ये इंटरेक्शन अवेलेबल होगा, यहां भी ये इंटरेक्शन अवेलेबल होगा, और यहां पे भी ये इंटरेक्शन अवेलेबल होगा. करेक्ट? क्लियर है ये? तो दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिला मेरे को, दैट इज हाइड्रेशन. तो दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन. दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन और सॉल्वेशन. इफ वाटर इज नॉट, इफ सॉल्वेंट इज anything other than water, then it is called solvation. If solvent is water, then we call it hydration. Is it okay? Okay. So this phenomenon is called hydration, and this interaction is called hydrogen bonding.
क्लियर। तो अब देखो ये हाइड्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक पार्शियल बॉन्ड बन रहा है। पार्शियल बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी। अगर सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई इसका मतलब क्या है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो एज द हाइड्रेशन विल इंक्रीज और एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। करेक्ट। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा देन इट्स मीन लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर प्रोडक्ट स्टेबल हो जा रहा है तो लेफ्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करने की टेंडेंसी क्या होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर है, समझा ये चीज। ओके तो हमने क्या बोला, जैसे ही हाइड्रेशन इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एज द हाइड्रेशन इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। इज इट करेक्ट। नो तो ये तो हमारा पहले वाले मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए देखो, अगर सेकेंड वाले मॉलिक्यूल्स में करें तो सेकेंड वाले के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, एन देन वी हैव we can write CH3 H here H and here H plus. Now in this condition there will be only 3 interaction. We can see here only 3 interaction will be available. Correct. If we go for the third one, if we go for the third one, what will happen, again one interaction will be removed. So as going top to bottom, what is happening, number of hydrogen bond shown by the product will decrease, means its hydration will decrease. Correct. If hydration will decrease then basic strength will decrease. Is it correct? Hydration increase, basic strength increase. Hydration decrease, basic strength will decrease. Because hydrogen, so hydration will increase their stability. Correct. Hydration will increase their stability. So as the hydration increase, stability of product will increase, so basic strength will increase. As the hydration decrease, stability of product will decrease, basic strength will decrease. Correct. So on going top to bottom, what will happen, on going top to bottom, number of hydrogen क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा तो हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। हाइड्रेशन कम है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरे के वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट फैक्टर क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड फैक्टर टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। थर्ड फैक्टर जो है वो हमारा इस पे नहीं लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, दैट इज नेग्लिजिबल। बट थर्ड वाले में आकर के देखें, थर्ड क्या होता है, अगर हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, तो लोन पेयर लेने के बाद इस टाइम में अब ये H जब यहां पे आएगा, इस H को इस ग्रुप और ये तीनों क्या है, बल्कि ग्रुप है। 3 बल्कि ग्रुप होने के वजह से इसको स्ट्रॉन्ग रिपल्सन मिलने लगता है। क्लियर है। विच इज नॉट अवेलेबल इन द 2 डिग्री 1 डिग्री एंड अमोनिया, बिकॉज it have sufficient space to accommodate 1 hydrogen, but in case of 3 degree there will be no sufficient space to accommodate 1 H plus, so H plus will get enough repulsion from these 3 groups. Correct. These 3 group could be methyl or anything else, it could be any alkyl chain, so it will get a strong repulsion. If repulsion will increase, its stability will decrease. Correct. If repulsion increase, if repulsion in the molecules will increase, stability of the molecules will decrease. If stability of molecules decrease, means stability of product is decreasing, or stability of product is decreasing means basic strength will decrease. Is it correct? Okay. The third factor is also decrease the बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया। क्लियर है। एक्चुअली ये जो रिपल्सन है दैट इज कॉल्ड बी स्ट्रेन। इसी रिपल्सन को हम लोग बी स्ट्रेन और बैक स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसका भी एक एप्लीकेशन है, हम पढ़ेंगे उस वाले को। क्लियर है। और बेसिकली याद रखने हैं ये जो बी स्ट्रेन है दैट इज ओनली वैलिड फॉर 3 डिग्री अमाइन,
only for 3 degree amount, not available, not considerable in 1 degree 2 degree और ammonia, that is completely negligible. करेक्ट है? तो देखो इस वाले में एक्वस फेज में, अगर सॉरी गैसियस फेज में मुझे बेसिक स्ट्रेन डिसाइड करने थे तो क्या था हमारे पास, वी ओनली हैव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, बट in the aqueous phase along with the electronic effect we have hydration and some effect of steric hindrance. अब तीनों को कंपेयर करके, तीनों को कोलिब्रेट करके हमको बताना पड़ेगा आंसर क्या है. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वी कैन नॉट डिसाइड देयर बेसिक स्ट्रेंथ बाय कंपेयरिंग ऑल दीज थ्री फैक्टर्स. ओके, तो हुआ क्या है फाइनली, एक्सपेरिमेंटली इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया गया है और उसी ऑर्डर को आपको याद रखना है. ऑर्डर उस तरह से क्यों आया वो हम बता सकते हैं कि इन तीनों के वजह से आया है, मगर कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन डोमिनेट कब, कौन डोमिनेट करेगा, कौन नहीं करेगा, इसके बारे में कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है. क्लियर है? तो आपको क्या करने हैं, जो ऑर्डर मैं लिख के दूंगा वो ऑर्डर याद रखते हैं. तो फर्स्ट है मिथाइल के लिए एन CH3N CH3H 2 degree amine, then in case of methyl amine 2 degree amine, then 1 degree amine NH2, then 3 degree amine CH3 CH3, then ammonia. क्लियर है? ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज या एक्वस मीडियम. करेक्ट है? तो एक्वस मीडियम में मिथाइल अमाइन का जो ऑर्डर होगा ये होगा, इसको नोट करेंगे. और इथाइल के लिए ये क्या था, मिथाइल अमाइन. इथाइल अमाइन के लिए जो ऑर्डर है, इथाइल को ET लिखते हैं, तो ETNH 2 डिग्री इथाइल, दैट इज 2 डिग्री इथाइल. इसके बाद 3 डिग्री इथाइल आएगा ET3N, दैट इज 3 डिग्री इथाइल. देन इथाइल अमाइन 2 डिग्री इथाइल अमाइन, 3 डिग्री इथाइल अमाइन, देन इज 1 डिग्री इथाइल अमाइन, देन अमोनिया. क्लियर है? तो एक्वस मीडियम में मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन का ये ऑर्डर होता है और आपको ये याद रखने हैं. क्लियर है? लास्ट ईयर एग्जैक्टली ये सवाल आया है, लास्ट ईयर नीट में सीधा ये सवाल पूछा गया है. ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप अमोनिया चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, तो आपको ये याद रखने. क्लियर है? या 3 डिग्री 2 डिग्री दैट इज 1 डिग्री एंड दैट इज अमोनिया. और यहाँ पे क्या आ गया है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एंड दैट इज अमोनिया. तो ये दो ऑर्डर आपको याद रखने हैं. क्लियर है? एक्वस फेज में क्या होता है, ये तीन फैक्टर भी अवेलेबल होते हैं. इन तीनों की वजह से इनके बेसिक स्ट्रेंथ में चेंजेस आते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है. गैसियस फेज में पूछा जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, आप सीधा अप्लाई करेंगे और आंसर बता देंगे. क्लियर है? नोट करें इसको. ये एक सवाल है, इसको सॉल्व करके बताएंगे. फाइंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ. क्लियर है? बेसिक स्ट्रेंथ मीडियम दे रखा है क्या? नहीं. अगर मीडियम नहीं दिया गया हो, सवाल में मीडियम नहीं दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, हमेशा उसको एक्वस मीडियम कंसीडर करेंगे. क्लियर है? अगर मीडियम मेंशन है दैट्स करेक्ट, अदरवाइज क्या करने हैं आपको, एक्वस मीडियम मेंशन करने कंसीडर करने हैं. क्लियर है? तो अब इस सवाल में देखो, आप एक्वस मीडियम में भी ले लीजिए तो क्या है, सभी के पास प्लस आई इफेक्ट आ रहे हैं. दूसरा क्या है, 3 डिग्री अमाइन है, हाइड्रेशन का क्या हो जाएगा, सभी में कॉमन हो जाएगा. क्लियर है? मगर थर्ड फैक्टर हमने बताया था बैक स्ट्रेन, बी स्ट्रेन और बैक स्ट्रेन. क्लियर है? तो बैक स्ट्रेन किस में लगता है, 3 डिग्री वाले में लगेगा. क्लियर है? बैक स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेन डिक्रीज करती है. तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक प्लस आई इंक्रीज करेगा, दूसरा क्या होगा, बैक स्ट्रेन डिक्रीज करेगा. प्लस आई और बैक स्ट्रेन में कंपेयर करेंगे, बैक स्ट्रेन हमेशा डोमिनेट करेगा. क्लियर है? बैक स्ट्रेन किस में लगाने हैं, ओनली 3 डिग्री. अच्छा ये सवाल ले लो, तो इस वाले में जो ऑर्डर आएगा तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर क्या आना चाहिए, ऑर्डर आना क्या चाहिए था, ऑर्डर हमारा आना चाहिए 3 2 1 होना चाहिए था, 3 2 1 होना चाहिए था. बट ड्यू टू बैक स्ट्रेन क्या हो गया,
बैक स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस क्या है, काफी ज्यादा है, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। इस वाले का उससे भी कम और इस वाले का उससे भी कम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर। क्लियर है? इस सवाल का बताओ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। NH and CH3, NH and C2H5, then NH3H7, इन तीनों में ऑर्डर बताइए। क्या यहाँ पे बैक स्ट्रेन लगेगा? क्या नहीं लगेगा। क्या बताया था, बैक स्ट्रेन बी स्ट्रेन कहां पे लगाना है, ओनली 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अमोनिया पे नहीं लगाने हैं। क्लियर है? इन तीनों पे नहीं लगाने हैं क्योंकि यहाँ पे बैक स्ट्रेन नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? तो इस वाले में ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए था, दैट वन बी 3 2 एंड 1। करेक्ट है? चलो ध्यान रखेंगे इस वाले का। देखो इसमें क्लास 6 बच्चा है, कुछ एसिड और बेस में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लगते नहीं है कि इनका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, मगर और एसिडिक स्ट्रेंथ, मगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा होती है। देखो एक गुआडीन मॉलिक्यूल है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ, इस वाले मॉलिक्यूल्स का बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया और एनिलीन से बहुत ही ज्यादा होता है। इसका बेसिक ऑलमोस्ट इनकम्पेरेबल टू NaOH, NaOH के बेसिक स्ट्रेंथ के बराबर जाने लगता है। क्लियर है? तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर आपको दिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इनका बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मल किसी अमोनिया से या एनिलीन से या अमोनिया डेरिवेटिव से, एनिलीन के डेरिवेटिव से काफी ज्यादा होता है। क्लियर है? देख सकते हो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनऑर्गेनिक बेस के बराबर होने लगता है। क्लियर है? उसके कंपैरिजन में आता है। क्यों आता है? तो अब वो देखिए यहाँ पे कि इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मगर इसके पास एक लोन पेयर क्या है, हमेशा अवेलेबल है, और साथ ही साथ इनसे सारे मॉलिक्यूल्स लोन पेयर डोनेट करने वाले हैं, 2 प्लस M भी लग रहा है। और जैसे ही आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, N माइनस, एक तो लोन पेयर पहले से था, फिर से माइनस आया, C डबल बॉन्ड N H2N प्लस N NH2, 4 डेंसिटी क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जाने के बाद और भी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? तो इस वजह से इन मॉलिक्यूल्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अमोनिया और एनिलीन के डेरिवेटिव से बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? सवाल में डायरेक्टली पूछा जाता है, आप MS हिमांशु पांडे सॉल्व करेंगे वहां पे भी ये सवाल मिलेंगे आपको, तो ध्यान रखेंगे ये वाला। एक ये मॉलिक्यूल्स है और इसके जैसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल्स है NH एंड NH2 एंड यहाँ पे CH3, इनका भी बेसिक स्ट्रेंथ बाकी अमोनिया डेरिवेटिव्स एंड एनिलीन के डेरिवेटिव से काफी ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल्स है आपके पास, इन दोनों में कंपेयर करने बोला जाए तो ऊपर वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब इधर आ जाओ, एक डेल्टिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड एंड कॉनकोरिक, CONCORIC, कॉनकोरिक एसिड, ये 3 एसिड हैं। आप देखेंगे all of them have alcoholic group, OH group. You can see alcoholic group, yeah, alcoholic group, sorry, alcoholic group means OH group, alcoholic group means OH group, and as we know that alcohol is less acidic than carboxylic acid, मगर इन तीनों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बहुत ही ज्यादा होता है। इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बहुत ज्यादा होता है। इस वाले का देखो, इसका pKa वैल्यू जो है pKa1 दैट इज 2.5, दैट इज pKa1 2.5 है, इस वाले का pKa1 0.5 एंड इस वाले का pKa वैल्यू 0.8 होता है। क्लियर है? मतलब इनऑर्गेनिक एसिड के बराबर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है? जो हमारे इनऑर्गेनिक
एसिड से उनका जो पीके वैल्यूज आते हैं दैट इज 2 से बिलो और 0 से बिलो नेगेटिव में चला जाता है। उसी तरह ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में इनका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे अगर आपको ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिले तो ये हमारे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड से काफी ज्यादा एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है उस चीज को भी देखो। ये दिख रहा होगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज एरोमेटिक। क्लियर है? ये एरोमेटिक है। मगर एक चीज है, जब आप इसका कॉन्जुगेशन कराएंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ये माइनस क्या होगा, इसके वजह से अनस्टेबल होता रहेगा। क्लियर है? अगर मैंने यहां माइनस बताया तो इसका प्लस एम लगेगा इसके ऊपर, वो क्या करेगा, उसको अनस्टेबल करेगा। मतलब इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी अब की बार अभी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। क्लियर है? साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या हो रहा होगा, इस दोनों ग्रुप की वजह से कम हो रहा होगा। बट जैसे ही आप यहां से H को हटाते, यहां क्या आता है, नेगेटिव। ये क्या करता है, इसको रिपेल करता है। अब इसके वजह से इनका रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। क्लियर है? अब इसके वजह से रेजोनेंस में जा पाने की टेंडेंसी क्या होती है, काफी ज्यादा इंक्रीज करती है। तो हम कहे साइक्लिक कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने लगता है। मतलब इसकी एरोमेटिसिटी क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इंक्रीज करती है। क्लियर है? तो एरोमेटिसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। सेम चीज आपको यहां भी देखने को मिलेगा। हर एक पीछे वाले कंडीशन में भी अभी भी यहां पे रेजोनेंस होगा, मगर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है, कम है। क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या करेगा उसको, जिस तरह यहां पे ये दोनों ग्रुप इसको क्या कर रहा था, डीमोटिवेट कर रहा था साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसी तरह ये दोनों भी क्या करेंगे, इसको डीमोटिवेट कर रहे होंगे। मगर जैसे ही यहां पे चार्ज डेंसिटी आएगा वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जनरेट कर जाएगा और फिर से साइक्लिक कॉन्जुगेशन जनरेट, साइक्लिक कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है ये चीज? अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर रहा है मतलब एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज कर रही है। एरोमेटिसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड से क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। आप डेटा वैल्यू भी याद रख सकते हैं, ये डेटा वैल्यू भी याद रख सकते हो। क्लियर है? तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपको सवाल में मिले तो ध्यान रखें, इन सभी को क्या करेंगे, बाकी ऑर्गेनिक एसिड से पहले रखेंगे। क्लियर है? चलिए इस वाले को नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप कुछ नहीं, आपको बस ये याद होने चाहिए कि ये एक है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ नहीं तो हमको इतना चीज तो याद होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, हमेशा अमोनिया डेरिवेटिव एंड एनिलीन के डेरिवेटिव से ज्यादा बेसिक होगा। ये तीनों सारे ऑर्गेनिक एसिड में क्या है, ये तीनों बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। क्लियर है? नोट करो इसको।